بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ اسپیشل ٹی وی اسٹوڈیو سے مقامی معلومات کے ساتھ میں ہوں محمد سلیمان خان۔ صوبائی وزیر صحت ڈاکٹر جاوید اکرم کا گوجرانوالہ کا دورہ، ڈپٹی کمشنر فیاض احمد موہل کے ہمراہ مفت آٹا پوائنٹس پر گئے اور آٹے کی تقسیم کا جائزہ لیا۔ غضنفر عباس کی رپورٹ میں تفصیلات دیکھتے ہیں۔ صوبائی وزیر صحت ڈاکٹر جاوید اکرم کا گجرانوالہ کا دورہ، ڈپٹی کمشنر فیاض احمد موہل کے ہمراہ ڈیزائر مارکیٹ چندہ قلعہ میں مفت آٹے کی تقسیم کا جائزہ لیا۔ ڈپٹی کمشنر فیاض احمد موہل اور اسسٹنٹ کمشنر صدر میاں توصیف حسن نے انتظامات پر بریفنگ دی۔ ڈپٹی کمشنر نے بتایا کہ گجرانوالہ اور وزیر آباد میں 19 مارچ سے اب تک 6,84,000 سے زائد مفت آٹے کے تھیلے تقسیم کیے جا چکے ہیں۔ صوبائی وزیر صحت ڈاکٹر جاوید اکرم نے اسلام مارکیٹ جی ٹی روڈ کاموں کی کا بھی دورہ کیا۔ انہوں نے شہریوں سے انتظامات کے بارے میں تاثرات معلوم کیے اور ضلعی انتظامیہ کی طرف سے کیے گئے انتظامات کو سراہا۔ صوبائی وزیر صحت ڈاکٹر جاوید اکرم نے کہا کہ شہریوں کو مفت آٹا فراہم کرنا رمضان المبارک میں حکومت پنجاب کا مستحق خاندانوں کے لیے رمضان کا تحفہ ہے، اور گجرانوالہ کی تمام تحصیلوں میں مفت آٹا تقسیم کے مراکز میں انتظامات قابل ستائش ہیں۔ چیف سیکرٹری پنجاب زاہد اختر زمان کا منڈی بہاؤالدین کا اچانک دورہ، انہوں نے مفت آٹا فراہمی مراکز کا معائنہ کیا اور انتظامیہ کو آٹا ٹرکنگ پوائنٹس پر آٹے کی تقسیم کے لیے عملے کی تعداد بڑھانے کی ہدایت کی۔ رانا حمزہ نیاز کی رپورٹ میں تفصیلات دیکھیے۔ چیف سیکرٹری پنجاب زاہد اختر زمان کا منڈی بہاؤالدین کا اچانک دورہ، انہوں نے مفت آٹا فراہمی مراکز کا معائنہ کیا اور انتظامات پر اطمینان کا اظہار کیا۔ چیف سیکرٹری نے کہا کہ آٹا ٹرکنگ پوائنٹس پر آٹے کی تقسیم کے لیے عملے کی تعداد بڑھائی جا رہی ہے اور آٹے کی کوالٹی اور وزن میں سمجھوتہ نہ کیا جائے، جبکہ شہریوں کو آٹا عزت و احترام سے فراہم کیا جائے۔ چیف سیکرٹری پنجاب کا کہنا تھا کہ مفت آٹے کی فراہمی وزیر اعظم پاکستان اور وزیر اعلیٰ پنجاب کا بڑا اقدام ہے، جس کے لیے اربوں روپے کی سبسڈی دی جا رہی ہے۔ عوام مفت آٹا ڈسٹریبیوشن سینٹر پر انتظامیہ سے تعاون کرے۔ چیف سیکرٹری پنجاب زاہد اختر زمان نے منڈی بہاؤالدین تا سرائے عالمگیر 2 رویہ زیر تکمیل سڑک کا معائنہ کیا اور تمام ترقیاتی منصوبوں کو مقررہ وقت میں مکمل کرنے کی ہدایت کی۔ سیکرٹری پاپولیشن ویلفیئر پنجاب سلمان اعجاز شیخوپورہ پہنچ گئے، شہر میں قائم مفت آٹا فراہمی مراکز کا جائزہ لیا۔ امتیاز احمد کی رپورٹ میں تفصیلات دیکھتے ہیں۔ سیکرٹری پاپولیشن ویلفیئر پنجاب سلیمان اعجاز کا شیخوپورہ کا دورہ، شہر میں قائم مفت آٹا فراہمی مراکز کا جائزہ لیا۔ ڈپٹی کمشنر سرمد تیمور اور اسسٹنٹ کمشنر لاریب اسلم کے ہمراہ شہر میں قائم مفت آٹا فراہمی مراکز کا جائزہ لیا۔ اس موقع پر ڈپٹی کمشنر سرمد تیمور نے صوبائی سیکرٹری کو بریفنگ دیتے ہوئے کہا کہ ضلع شیخوپورہ میں 5.5 لاکھ گھرانوں کو وزیر اعظم پاکستان اور وزیر اعلیٰ پنجاب کے اسپیشل رمضان پیکج کے تحت مفت آٹا فراہم کیا جا رہا ہے، اور اب تک 4.25 لاکھ گھرانوں کو 23 آٹا ڈسٹریبیوشن مراکز سے مفت آٹا فراہم کیا جا چکا ہے۔ سیکرٹری پاپولیشن ویلفیئر پنجاب نے شہریوں سے گفتگو بھی کی اور حکومتی اقدامات کو قابل ستائش قرار دیا۔ گوجرانوالہ میں مفت آٹا پوائنٹ تو قائم کر دیے گئے ہیں، تاہم شہری آٹا نہ ملنے پر شدید ذہنی اذیت میں مبتلا ہیں۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں ہمارے نمائندے حسیب مدنی سے۔ جی بتائیے گا حسیب، شہریوں کو آٹا کیوں نہیں مل رہا؟ میں جی 1 وجے دا آیا وا دوپہر دا، روزے دے نال کھپ چلا وا، ماڑا بندہ وا، جدو باری آئی انہاں مینوں نہل کر دتا جی۔ سانو آٹا نہیں مل رہا، جی ماڑے بندے کتنے جائیے، جو آٹا لینا کوئی نہیں آٹا ملتا پیا۔ آٹا میسج آیا کہ 29 تاریخ نو جا کے آٹا جہاں مرضی فرد جا کے آٹا لے آئے۔ میں جا کے پوچھا تو انہوں نے آخیا آٹا نہیں ملنا ہے۔ میں میسج آیا، انہوں نے کہا سانو میسج کا کوئی پتہ نہیں، بحث نہ کرو سارے نال۔ جی بالکل، پنجاب بھر کے دیگر شہروں کی طرح گجرانوالہ میں بھی حکومت پنجاب کی طرف سے مفت آٹے کی فراہمی کا عمل جاری ہے۔ اس وقت ہم آٹا پوائنٹ پر موجود ہیں، جہاں پر مرد و زن کی بہت بڑی تعداد موجود ہے۔ مرد و خواتین کے ساتھ بچے اور بزرگ شہری بھی یہاں پر دیکھنے کو مل رہے ہیں۔ آج اسپیشل ٹی وی ٹیم گجرانوالہ نے شہر بھر میں لگائے گئے مختلف 23 آٹا پوائنٹس کا وزٹ کیا اور لوگوں کی مشکلات جاننے کی کوشش کی، تو زیادہ تر جو لوگوں کی مشکل یہ سامنے آئی کہ جب آنے والے سائلین جو ہیں مرد و خواتین اپنا قومی شناختی کارڈ جب دیتے ہیں اور اس کو
स्कैन किया जाता है तो स्कैन करने वाला जो अमला है उसकी तरफ ये कहकर इनकार कर दिया जाता है कि आप आटा मुफ्त हासिल करने के अहल नहीं हैं, जिसकी वजह से आने वाले जो लोग हैं वो ऑलरेडी परेशान होते हैं, लेकिन ये सुनने के बाद उनकी परेशानी भी बढ़ जाती है और उनके चेहरे पर मजीद मायूसी आ जाती है। लिहाजा गुजरांवाला की स्पेशल टीवी की टीम ने लोगों की आवाज़ बना और हुकूमत पंजाब तक ये आवाज़ पहुंचाई कि वो लोग जिनको ये नाअहल कहकर इनकार कर दिया जाता है उनकी स्पेशल टीवी आवाज़ बना और हुकूमत पाकिस्तान से मुतालबा किया है कि हुकूमत उन लोगों के लिए भी ऐसा लाएहमल तैयार करे कि जिसकी वजह से तमाम मुस्तहिक लोगों को तमाम ख़वातीन मर्दों को आटा मुफ्त हासिल हो सके। हुकूमत पंजाब की तरफ से लगाए गए मुख्तलिफ पॉइंटों पर लोगों को इसके अलावा भी मज़ीद मुश्किलात का सामना रहा। 4-4 घंटे लंबी कतारें लगी रहीं। मर्दों ख़वातीन रोज़े की हालत में तवील इंतज़ार के बाद जब उनकी बारी आई तो उनको ये कहकर लौटा दिया गया कि आप अहल नहीं हैं और बहुत कम रेशो रही जिनको आटा दिया गया। अभी हमारे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं कि इनको किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा। एक मुतासरा शहरी हमारे साथ मौजूद है, इनसे बात करते हैं। जी बताइएगा क्या सूरत आ रही? मैं है मजदूर बंदा, छोटे छोटे बच्चे ने। आज 6वां दिन हो गया मैंने 100 रुपया किराया ला के मैं आना थे। 6 दिन हो गए ने पहले मैंने नाखल कर दिते हैं। अज जे आया तो उन्हें कि शनाख्ती कार्ड के उत्ते 11 बजे का आटा चला गया। शनाख्ती कार्ड मेरी जेब च लै कौन गया वे? हाँ जी बिल्कुल, यहाँ पर शहरी का कहना है कि शनाख्ती कार्ड मेरे पास है और 6 दिन से मैं आटा पॉइंट पर चक्कर लगा रहा हूँ मुफ्त आटे के असूल के लिए। मेरा शनाख्ती कार्ड मेरे पास है, मुझे 6 दिन आटा नहीं मिला, लेकिन आज उसे ये कहा गया कि इसके हिस्से का आटा कोई और दे गया। हमारे साथ एक और शहरी मौजूद है, इनसे बात करते हैं। जी बताइएगा। 3 दिन हो गए सानू आंदे रोज ही असी फिर के तुर जाने, दिहाड़ी तरोड़ के आईदा। ये तो कोई शै नहीं मिलती, नाहिल कर देंगे ने कि नाहिल हो गया ना, सानू दसदे ने कि कर तो नाहिल करते हैं, कोई गल नहीं करते, सिर्फ कहते हैं चल जाओ, कोई नहीं तुहाडा नहीं आया है, जवाब दे देंगे। हाँ जी बिल्कुल, शहरियों का ज़्यादातर यही शिकवा सामने आ रहा है कि आटा नहीं दिया जा रहा और उनको नाअहल किया जा रहा है। और जब हमारी ज़िली फूड कंट्रोलर से बात हुई तो उनका यही कहना था कि सब ओके की रिपोर्ट दे दी गई है। लिहाजा गुजरांवाला में जितने भी लोग मुफ्त आटे की फराहमी के लिए यहाँ पर आ रहे हैं, हसूल के लिए आ रहे हैं, उनको ज़्यादातर को मायूसी का शिकार होना पड़ रहा है और उन्हें वापस खाली हाथ लौटना पड़ता है। अल-अस्मद फाउंडेशन मंडी बहाउद्दीन ने इलाके के गरीब और मजदूर पेशा अफराद के लिए रमज़ान दस्तरखान सजा रखा है। माह सयाम में अल्लाह ताला की खुशनुदी हासिल करने और मुस्तहिक अफराद को बाइज्जत सहरी और इफ्तारी सिर्फ 20 रुपए में करवाई जाती है। हमजा नियाज की रिपोर्ट में तफसीलात देखते हैं। अल-अस्मद फाउंडेशन मंडी बहाउद्दीन ने इलाके के गरीब और मजदूर पेशा अफराद के लिए माह सियाम के बबरकत महीने में रमजान दस्तरख्वान सजा रखा है। इस दस्तरख्वान में हर आमो खास के लिए सिर्फ 20 रुपए में खाने का एहतमाम किया गया है। अल-अस्मद फाउंडेशन ने रमजान मुबारक में अल्लाह ताला की खुशनुदी के लिए रेलवे फाटक, पुराना रसूल रोड और पंजाब सेंटर में सहरी और अफ्तारी का एहतमाम किया, जहाँ पुरतकल्लुफ बाइज्जत सहरी और अफ्तारी 20 रुपए में करवाई जा रही है, जिसमें बिरयानी, खजूर, रोटी, सालन शामिल है। अल-अस्मद फाउंडेशन के सहरी और अफ्तारी दस्तरख्वान से दिहाड़ीदार मजदूर का मुस्तफीद हो रहा है। अल-अस्मद फाउंडेशन की जानिब से लंगर खाने का एहतमाम फरमाया गया है। रमज़ान के मुक़द्दस महीने में लोगों के लिए अफ्तारी और सहरी के मामलात किए गए हैं। तो महंगाई के इस दौर में जिस तरह लोग परेशान हाल हैं, तो इस परेशान हाल लोगों के लिए महंगाई के इस दौर में 20 रुपए टोकन के साथ लोगों को खाने का पार्सल दिया जा रहा है। और जो खाने का पार्सल है उसमें 2 रोटियां, सालन, इसके अलावा चावल बिरयानी है और मीठे चावल हैं, खजूरें हैं। ये सब कुछ एक पार्सल के अंदर मौजूद है। और मैं बताता चलूं कि 20 रुपए टोकन रखने का मतलब ये है कि जो लोग सफेद पोश हैं उन लोगों की इज्जत नफ्स मजरू ना हो। वो लोग इस चीज को फील करें कि वी आर पेइंग समथिंग, कि हम कुछ ना कुछ पे कर रहे हैं और ये पे करने के बाद हम 20 रुपए पे कर रहे हैं, 20 रुपए पे करने के बाद हम एक पार्सल ले रहे हैं। शहरियों ने अल-अस्मद फाउंडेशन के दस्तरख्वान के इनेकाद को खुशाइन करार दिया। कैमरा टीम के साथ राना हमजा नियाज, ब्यूरो चीफ, मंडी बहाउद्दीन। मेरा साइज में बहुत बेइंसाफी हुई है, सारी फसल खराब कर देती है। विहाड़ी में थाना माचीवाल की हुदूद 19 WB में बासर अफराद का गरीब मेहनत कश पर तशद्दुद, 2 एकड़ जमीन पर कब्जे की कोशिश, गंदुम की खड़ी फसल पर हार्वेस्टर चला दिया,
फसल तबाह, लाखों रुपए का नुकसान हो गया। मेहनत कश ने अहले इलाका के हमरा मुजाहरा किया। वजीर आला पंजाब, RPO मुल्तान और DPO विहाड़ी से नोटिस लेने का मुतालबा किया। ਮੁਹੰਮਦ ਹਸਨ 19W ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਰਾਜਪੂਤ ਆ। ਮੈਂ ਰਕਬਾ ਇਹਨਾਂ ਟੁੱਡੀਆਂ ਕੋਲ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਮੁੱਲ ਪੌਣੇ 2 ਕਿੱਲੇ। 10-12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਕਬਜ਼ਾ। ਸਾਡਾ ਕੇਸ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਥੱਲੋਂ ਸਿਵਲ ਕੋਰਟੋਂ ਮੇਰੇ ਹੱਕ ਚ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੀ ਪਿਆ, ਉੱਥੇ ਚੱਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਜ਼ਬਾਜ਼ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਮੇਰੀ ਕਣਕ ਆ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਪੌਣੇ 2 ਕਿੱਲੇ, ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ, ਮੇਰੀ ਕਣਕ ਸੱਚੀ ਜਿਹਦਾ ਹਾਰ ਬੈਡ ਲੰਘਾ ਕੇ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਂ 1-5 ਦੇ ਕਾਲ ਕੀਤੀ, ਜਨਾਬ SHO ਮੌਕੇ ਤੇ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਮੇਰਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸਮਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈਰਬੈਂਡ ਕੱਢ ਕੇ ਸਾਰੀ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਮੇਰੇ ਕੁਹਾੜੀ ਵੱਜੀ ਜਨਾਬ, ਆ ਡਾਂਗੇ ਲੱਗੇ, ਮੇਰੇ ਪੋਤਾ ਨਾਲਾ ਡਿੱਗਿਆ, ਦੇਖ ਲਓ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਇਹ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਹੈਰਬੈਂਡ ਥਾਣੇ ਚੱਲਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਥਾਣੇ ਦਾ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਗੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਰਬੈਂਡ ਗਏ, ਮੈਂ ਥਾਣੇ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਮੇਰੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ, ਨਾ ਉੱਥੇ ਹਾਰਬੈਟ ਸੀਗੀ ਨਾ ਇਹ ਕੁਛ ਸੀਗਾ। ਜਨਾਬ ਮੇਰਾ RPO ਮੁਲਤਾਨ, DPO ਵਿਹਾੜੀ, ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਮੇਰਾ ਇਨਸਾਫ ਕਰੇ। ਮੇਰੀ 2 ਕਿੱਲੇ ਕਣਕ ਜਨਾਬ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਰੈਂਪੇ ਕੌਮ ਨੇ ਫੜ ਕੇ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਨਿੱਕੇ ਚਲੋ ਪੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਫੇਰ ਵੀ ਸੀ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਜੀ ਨਾ ਮੇਰੇ ਕੰਮ। ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। 5-10 ਲੱਖ ਦੀ ਕਣਕ ਮੇਰੀ ਗਈ। ਦੱਸੋ ਜੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਾਂ? ਮੈਨੂੰ DPO ਵਿਹਾੜੀ ਦੇ ਯਕੀਨ ਆ, ਮੇਰਾ ਇਨਸਾਫ ਕਰੇ, ਮੇਰਾ DPO ਵਿਹਾੜੀ ਇਨਸਾਫ ਕਰੇ। ਮੈਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੇਰੇ ਸਾਈਂ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਕੋਈ ਜੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ, ਮੇਰਾ ਸਾਈਂ ਇਕੱਲਾ ਸੀਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਹੈਡ ਮਾਸਟਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਆ ਕੇ ਵਾੜ ਦਿੱਤੀ ਵਿੱਚ। ਮੇਰਾ ਸਾਈਂ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੜ ਕੇ ਕੁਹਾੜੀਆਂ ਨਾਲ ਮਾਰਿਆ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਡਾ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਓ। ਮੇਰਾ ਸਾਈਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਫਸਲ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਫਸਲ ਸਾਰੀ ਗੁੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕੱਚੀ ਫਸਲ ਸਾਡੀ ਬੇਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਰੈਂਪੇਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਣਕ ਵੱਢੀ ਆ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸਾਰੀ। ਇਹ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਵਾ, ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਤੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ DPO ਵਿਹਾੜੀ, RPO मुल्तान और वज़ीर आला शहबाज शरीफ से। ਸਾਨੂੰ उम्मीद है कि ਸਾਨੂੰ ਇਹਦਾ इंसाफ दिता जाएगा। चिन्योट में थाना रजुआ की हुदूद में मुसल्लह डाकुओं का नाका, 50 से जायद राहगीरों और इलाका मकीनों को गन पॉइंट पर नकदी, मोबाइल फोन्स और दीगर कीमती सामान से महरूम कर दिया। मुतासिरीन ने डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब के सामने एहतजाज किया। अब्दुर्रहमान ताहिर सियाल की रिपोर्ट में तफसीलात देखते हैं। चिन्योट में बढ़ती हुई डकैती की वारदातों का सिलसिला न रुक सका। थाना रजुआ के इलाका पंगू मोड़ कॉलोनी के करीब मुसल्ला डाकू ने नाका लगाकर 50 से जायद करीबी आबादी के मकीनों और राहगीरों को लूट लिया। मुसल्ला डाकू ने 7 लाख से जायद नकदी, मोबाइल फोन्स और दीगर कीमती सामान लूट लिया। मुतासरीन ने डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी मुजाहरा किया और पुलिस की नाअहली के खिलाफ नारेबाजी की। थाना रजोया चौकी मथरुमा साडी ज़ैल है जी। मैं अनवर वैस खोजी पे बोलना मौजे बल्ला रहा हूं चाहे हुसैन वाला खू। ਇਹ ਨਾ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਤਾਈਂ ਕੋਈ ਰਾਬਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਖੁਰੇ ਵੇਖਣੇ ਜਾਨੇ ਕੱਚੇ ਤੇ ਖੁਰੇ ਪੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਚੋਰ ਜਾਂਦੇ ਪਏ ਨੇ। 6-7 ਡਾਕੂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਾਬਤਾ ਕੀਤਾ। ਰਾਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰਾਬਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਪੁਲਿਸ ਦਾ, ਚੌਕੀ ਮਥਰੂਮਾ ਜਾਂ ਥਾਣਾ ਰਜੋਏ ਦਾ। ਇਹ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਨ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕੂ ਹਨ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਪਏ ਫੌਜੀ ਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ। ਅੱਲਾ ਜਾਣੇ ਪੁਲਿਸ ਰਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਕੋਈ एक्शन नहीं लेंदी। मुतासिरीन का कहना था कि चिन्योट पुलिस आवाम को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने में नाकाम हो चुकी है। मुतासिरीन ने वज़ीर आला पंजाब और IG पंजाब से नोटिस लेने का मुतालबा किया। लाहौर में थाना मजंग के इलाके में शराबी की हुल्लड़बाजी, शराब की खाली बोतल मारकर गली में खड़ी गाड़ी का शीशा तोड़ डाला। चौकीदार ने मना किया तो शराबी ने चौकीदार को तशद्दुद का निशाना बना डाला। बूढ़े चौकीदार ने थाना मजंग में दरखास्त दी, ताहम पुलिस की जानिब से कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई। गुजरात में लाला मूसा GT रोड अंडरपास सुस्त रवि का शिकार। सारा दिन ट्रैफिक जाम रहना मामूल बन गया है। गाड़ियों की लंबी कतारों के बायस पैदल चलना भी मुहाल हो चुका है। शहरियों ने आला हुकाम से नोटिस लेने की अपील कर दी। शहरियों का इस हवाले से क्या कहना है, आइए देखते हैं। ये ठीक है, लेकिन इस वक्त बहुत मसाइल हैं। इतनी ट्रैफिक है, रोड पे एक्सीडेंट हो रहे हैं, तो बहुत मसाइल हैं इसके। जो शुरू किया है इसको जल्दी ख़त्म करना चाहिए। तो ठेकेदार काम छोड़ के चले गए हैं। देख लें आप रोड का क्या हाल हुआ है इधर।
बहुत ज़्यादा मसाइल हैं इधर। हानि होए ने जी कि समझे कारोबार अपना बच्चों का रिजक कमाना जेड़ा आजकल बहुत मुश्किल होए है। ਇਹ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਸਾਲ ਲੱਗਦਾ 2 ਸਾਲ ਲੱਗਦਾ ਜੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਕਦੇ ਹਨ ਪਏ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਸ਼ੋ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਲੀਲ ਕੀਤੇ ਆ ਦੂਸਰੀ ਆਵਾਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਲੀਲ ਕੀਤੇ ਆ ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੀ ਕਿ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਮੁਕਾਇਆ ਜਾਏ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਜਾਏ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਰਿਜ਼ਕ ਕਮਾ ਲਈਏ ਤੇ ਅੱਜਕੱਲ ਤੇ ਰਿਜ਼ਕ ਕਮਾਣਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਇਆ ਸਰ। ਸਰਵਿਸ ਰੋਡ ਛੱਡ ਕੇ ਜੀਟੀ ਰੋਡ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਬਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਬੰਦੇ ਐਂਟਰ ਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਸਰਵਿਸ ਰੋਡ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਵੱਡਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਮੇਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਜਿਆਦਾ ਸਾਰਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਇਹ ਮੇਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੀਵਾਂ ਜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰ ਹੋਏਗਾ। ਇੰਟਰ ਪਾਸ ਹੁਣ ਭਰਿਆ ਜੇ ਬਾਅਦ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਰਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਨੇ ਮੁਤਾਸਰੀਨ ਹੋਈ ਨੇ ਬਕਾਇਆ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਆਮਦੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਇੱਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਦਲੀਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਭ ਬੰਦੇ ਬਲਦੀਆ ਦੇ ਮਕਰੂਜ਼ ਨੇ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਕਿਰਾਇਆ ਵੀ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਸਾਨੂੰ ਇੰਜ ਭਾਇਆ ਜਾਏ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ नहीं है। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने पुलिस फोर्स के महकमाना एहतसाब के हवाले से अहम हिदायत जारी कर दी। मातहतों की छोटी छोटी गलतियों पर बड़ी सजाएं देने की रविश डिसिप्लिन मैट्रिक्स की वाज़ेह खिलाफ वर्जी है। उन्होंने कहा कि जिस सुपरवाइजरी ऑफिसर ने डिसिप्लिन मैट्रिक्स से हट कर सजा दी तो वो खुद उसका एहतसाब करेंगे। आईजी पंजाब का मजीद क्या कहना था आइए देखते हैं। पंजाब पुलिस के ऑफिसर्स एसपीज एंड अबव, मेरा ये पैगाम खसूसी तौर पे आपके लिए है और आपकी फोर्स के लिए है। अकाउंटेबिलिटी और एहतसाब पुलिस के लिए बहुत जरूरी है, जरूर कीजिए। आपने ये यकीनी बनाना है कि अगर इस महकमे में किसी ने अवाम के साथ ज्यादती की है तो आप उसका न सिर्फ इजाला करेंगे बल्कि ऐसे जालिम पुलिस अफसर का हाथ रोकेंगे, इंक्वायरी करके अगर जरूरत हुई तो उसको डिसमिस करेंगे और उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। लेकिन आपको मैट्रिक्स जो आप लोगों को दे दिया गया है सजाओं का, डिसिप्लिनरी एक्शन का, उसके अलावा सजा देने का इख्तियार नहीं। आप अनड्यू शो कॉज नोटिस नहीं दे सकते। आप उन शो कॉज नोटिस के ऊपर मेजर पेनल्टी बगैर इंक्वायरी के नहीं दे सकते। ये कैसे मुमकिन है कि छोटी छोटी बात के ऊपर आप 50-50 लोगों को एक दिन में सजा दे दें? आप एक ही शख्स को 3-3 मरतबा रिवर्ट करके सब इंस्पेक्टर को कांस्टेबल बना के अपने दफ्तर से बाहर निकाल दें। आपके इन फैसलों के खिलाफ अपीलें होनी हैं। अगर वो अपीलें सेट असाइड हुई, ये आपकी नाकामी है। इससे आपके रोब में इजाफा नहीं हो रहा, इससे आपकी इज्जत में कमी आ रही है। अपील्स जो डीआईजीज एंड अबव उनके पास हैं, इन पे जल्द से जल्द फैसले करें। आप बेहतरीन ऑफिसर्स हैं, आपने क्राइम कंट्रोल किया, वेलफेयर की, एडमिनिस्ट्रेशन बेहतर की, वेलफेयर के फंड्स बेहतर जनरेट किए, पब्लिक डीलिंग की, तो इस एस्पेक्ट को भी इग्नोर मत कीजिए, अनड्यू पनिशमेंट्स मत दीजिए। और एक आखिरी बात, आपका रवैया आपकी फोर्स के साथ बेहतरीन होना चाहिए, दोस्ताना होना चाहिए। दरबारों में जाएं। कितने हैं जिन्होंने जाके पुलिस लाइन में कांस्टेबली के साथ बैठकर खाना खाया है? कितने हैं जिन्होंने दरबार के बाद उन्हीं की मेजों के ऊपर बैठ के उनके साथ चाय पी है, उनके बच्चों और उनके मसाइल के बारे में दरियाफ्त किया है? वेलफेयर को पहले रखिए, सजाओं को बाद में लाइए। अगर आप ये करेंगे तो आपका वो महकमा अच्छे अल्फाज में याद करेगा, और अगर आप नहीं करेंगे तो फिर मैं आपकी अकाउंटेबिलिटी करूंगा। मैंने कुछ ही दिनों के बाद तमाम अफसरों पे एक चेक रखते हुए उनको बुलाना है और उनके सामने उनकी कारकर्दगी रखनी है। ख्याल कीजिएगा, ऐसा ना हो कि उस दिन आपको मेरे आगे शर्मिंदगी हो। फोर्स से प्यार कीजिए, फोर्स का मोरल बुलंद कीजिए। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान स्टेट लाइफ इंश्योरेंस में शहरियों को अपनी पॉलिसी जारी रखने में बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इस हवाले से लाहौर के जोनल हेड रिजवान का क्या कहना है, जानते हैं चीफ रिपोर्टर सईद राना से। जी तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं स्टेट लाइफ के जोनल हेड रिजवान साहब के पास मौजूद हूँ, जहाँ अगर आपको बताया जाए तो यहाँ पर स्टेट लाइफ के मतलब भी बात इनसे करते हैं और इसके साथ साथ इनके जो स्टेट लाइफ में जो मुश्किलात हैं उस पर भी बात करेंगे। रिजवान साहब, आप ये बताइएगा कि जो इस वक्त सूरत हाल है माशरे की, उस हिसाब से, और उसके साथ साथ जो आपके कस्टमर्स हैं जो स्टेट लाइफ पॉलिसी वगैरह लेते हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जो स्टेट लाइफ पॉलिसी ले तो लेते हैं मगर अपनी किसी वजूहात की बिना पे वो नहीं आगे चल सकते, तो उसमें भी बहुत से लोग परेशान भी हैं और वो समझते हैं कि यार ये हमारा को बेहतर हल निकलना चाहिए, बेहतर रास्ता होना चाहिए जिससे
जो हमारे पैसे के हैं, जो उसके साथ अर्निंग होती है, जो भी आपका एक सिस्टम है, उसको कैसे डेवलप करते हैं, इसके बारे में सभी जो है वो आप बताइए। हाँ, इस सिलसिले में मैं राना साहब आपको ये बताना चाहूँगा कि स्टेट लाइफ जो है वो गवर्नमेंट का मालियाती इदारा है और ये लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर में वाहिद इदारा है जो गवर्नमेंट सेक्टर में काम कर रहा है। स्टेट लाइफ का जो बुनियादी मकसद है वो ज़्यादातर गरीब लोगों की छोटी छोटी बचतें करके उन्हें आफ्टर मैच्योरिटी 20 ईयर्स बाद 10 ईयर्स बाद पेंशन की शक्ल में मुख्तलिफ़ किस्म के हमारे पास प्लान्स हैं और बच्चों की शादी के लिए। और दूसरा सबसे बड़ी बात यह है कि जहाँ इकॉनमी की सूरत हाल जो इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद जब से हमारे ये चेयरमैन स्टेट लाइफ शोएब जावेद हुसैन साहब तशरीफ़ लेकर आए हैं, 2 सालों में स्टेट लाइफ ने रिकॉर्ड बिजनेस किया है। लास्ट ईयर भी हमारा मार्केट शेयर उससे पहले 50% था, लेकिन 2022 में हमारा मार्केट शेयर 65% हो गया और लास्ट ईयर हमारी ग्रोथ जो है वो 100% हुई है। तो स्टेट लाइफ ना सिर्फ लाइफ इंश्योरेंस का बिजनेस करती है बल्कि ग्रुप इंश्योरेंस और ये हेल्थ इंश्योरेंस जो है वो भी स्टेट लाइफ से डील करती है। तो इस हवाले से आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है कि आजकल की माशी सूरत हाल के मुताबिक काफ़ी लोग जो हैं वो पॉलिसी अपनी कंटिन्यू नहीं कर सकते। उसके लिए हमारे पास जो बाकी तमाम इंश्योरेंस कंपनियों से ज़्यादा फैसिलिटीज़ हैं। ये हमारा जोन है लाहौर सेंट्रल जोन। यहाँ लाहौर सेंट्रल जोन में कसूर और पत्तों की वो इलाके भी शामिल हैं। तो अल्लाह का शुक्र है कि लाहौर सेंट्रल जोन 4 सालों से पाकिस्तान में नंबर 1 है और लास्ट ईयर भी रिकॉर्ड बिजनेस किया है। तो इसमें हम तमाम लोगों को वो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं। हमने 1 विंडो काउंटर बनाया हुआ है जिसके अंदर कोई भी आदमी अगर अपनी पॉलिसी अपनी ज़रूरियात की वजह से नहीं चला सकता आफ्टर 3 ईयर्स 4 ईयर्स, तो वो सिंपल एप्लीकेशन दे के विद इन 15 डेज अपनी पॉलिसी वापस ले सकता है। अच्छा, पॉलिसी खाली जो पैसे वो आपको डिपॉजिट करवाते हैं वही पैसे दिए जाते हैं या उसके साथ जो आपका एक सिस्टम है कि इसको अगर उसने 1 रुपया जमा करवाया है तो आप उसको 2 रुपये या 1.5 रुपया या उस हिसाब से देते हैं पैसे? हाँ, स्टेट लाइफ वाहिद इंश्योरेंस कॉरपोरेशन है जो लोगों को अगर वो दरमियान में अपना कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म भी कर लेते हैं तो फिर भी उन्हें प्रॉफिट के साथ पैसे वापस करती है। अगर कोई भी पॉलिसी 3 साल तक चल जाए तो उसे जितनी भी अमाउंट उसकी जमा होती है वो 100% उसे कैश वैल्यू की शक्ल में वापस कर दी जाती है। और उसके बाद जैसे जैसे टाइम गुजरता जाता है अगर वो बाद में ख़त्म कराता है तो उसे प्रॉफिट के साथ भी पैसे वापस मिलते हैं। हाँ जी, बिल्कुल। इनका कहना ये है कि जो पॉलिसी मुकम्मल तौर पर आगे नहीं चला सकते और किसी वजूहात की बिना पर वो पॉलिसी ख़त्म कर देते हैं, अगर वो 3 साल तक पॉलिसी है तो उनको मुकम्मल इंटरेस्ट के साथ उनको पैसे जो है वो डिपॉजिट कर दिए जाते हैं। जी। शेखुपुरा में पाकिस्तान नजरियाती पार्टी के सदर एहसान नवाज विर्क ने कहा है कि पाकिस्तान नजरियाती पार्टी नौजवानों के लिए बनाई गई है। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू के दौरान किया। उन्होंने मजीद क्या कहा, आइए देखते हैं। देखिए, पाकिस्तान नजरियाती पार्टी जो है वो पाकिस्तान की 75 साल तारीख के अंदर नौजवानों की वाहद और पहली सियासी नुमाइंदा जमात है और ये शहीद हैदर मलिक सियालवी ने पाकिस्तान नजरियाती पार्टी की सूरत में इस मुल्क के तमाम नौजवानों को एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया है जो कि आपको पार्लियामेंट के अंदर रसाई दे सकता है और आप इस निज़ाम को बेहतरीन तरीके से चला सकते हैं। देखें, पाकिस्तान की 75 साल तारीख के अंदर इस कौम के ऊपर बड़े तजर्बात हुए हैं और मैं कहता हूं कि कम अज़ कम एक तजुर्बा पाकिस्तान के इस बाशऊर पढ़े लिखे और सियासी शऊर रखने वाले नौजवान को भी देना चाहिए कि एक तजुर्बा पाकिस्तान का ये नौजवान भी करे। और एक चीज़ मैं दावे के साथ कहता हूं और मुकम्मल यकीन के साथ कहता हूं कि पाकिस्तान का नौजवान जो है वो कौम को मायूस नहीं करेगा। और ये पाकिस्तान नजरियाती पार्टी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि पूरे मुल्क के अंदर जितने भी नौजवान हैं जो कि हकीकी मानों में पाकिस्तान को इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान देखना चाहते हैं, एक तरक्की याफ्ता मुल्क देखना चाहते हैं, वो अपनी तमाम जो कोशिशें हैं उनको बुरुए कार लाएं और आएँ पाकिस्तान नजरियाती पार्टी का साथ दें, इस मुल्क का साथ दें, इस रियासत पाकिस्तान का साथ दें और पाकिस्तान की रियासत की तरक्की के लिए और इसकी तमीर के लिए अपना जो है वो खुसूसी हिस्सा डालें इसमें और पाकिस्तान की तमीर व तरक्की के लिए अपनी कोशिशें जो है पाकिस्तान नजरियाती पार्टी के साथ मिलकर कामयाब करें। स्पेशल टीवी से फिल वक्त इतना ही। मजीद मालूमात के लिए देखते रहिए स्पेशल टीवी।